So let's start our new segment in the Partnership Act, and that is what? Chapter 3rd, and it is from section 9 to 17. This chapter is very important for your prelims. This chapter is very important for your prelims, and also one question at least you can expect from your mains, in your mains examinations. And कौन सा question आएगा? I will let you know. What? This is regarding the relation of the partners. Relations of whom? Relations of partners. And this is what? Inter C. Inter C means what? It is dealing with what? Relations of the partners to one another. So basically sections 9 to 17, these sections, this group of sections is dealing with the relations of the parties vis-a-vis each other to one another. It means what? See, there can be the relations of the partners with third parties as well. Third party, है ना? Means outsiders, with those persons who are not partners, उनसे relationship हुई, वो next segment होगा from 18 onwards. Fine. So this chapter, section 9 to 17, is dealing with the relations of the partners with one another. It means what? When I talk to them, when we use the term relations, तो इट डजेंट मीन कि कौन भतीजा है, कौन चाचा है, को पापा मम्मी, ये सब रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं. दिस टॉक्स अबाउट रिलेशन मीन्स हेयर राइट्स एंड ड्यूटीज. दिस इज रिलेशनशिप, मतलब what are the rights of the partners and what are the duties of the partner qua each other, qua firm के प्रति what are the duties, firm के against what are the rights, what are the rights of the partners against each other. So these are the topics which are covered from section 9 to 17. तो ये है हमारा आज का टॉपिक, relations between the partners from section 9 to 17, and this can be the question. Which sections govern this? 9 to 17 as a group याद रखना. Relations of the partners inter se. यहाँ से पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का आएगा, और उसके लिए हमें अब पढ़ना पड़ेगा, हमें समझनी पड़ेगी इनकी म्यूचुअल जो प्लानिंग है, इनकी प्लान है, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये पूरी जो स्कीम है, स्कीम ऑफ scheme of 9 to 17 chapter. This is chapter 3rd. What is this? You will have to start it. You will have to start with section 11. It deals with the general principle, and then 9 and 10 one side, and then 12 to 17. This is the scheme. We should read this chapter in this way: 11, 9, 10 and 12 to 17. If you read this chapter in this way, then there will be better concept clarity, and for that purpose we should go first to this line, section 11. Basically this is what section 11 says. That 11 says what? It gives you the general rule. It gives you general rule that as we have discussed earlier as well, section 4 में यही बात आई, section 5 में यही बात आई. They have mutually agreed to share the profits of the business carried on by them all. Fine. तो उसमें क्या है कि the basis of, हमने पढ़ चुके हैं कई बार repeatedly कि basis of the partnership is what? Contract. By that agreement, by that contract, they can decide their mutual rights and duties. So general rule is what? कि what will be their rights, what will be their rights and what will be their duties vis-a-vis each other. It will be determined by them themselves. वो खुद ही डिसाइड करेंगे. राइट्स का मतलब what will be my share, what will be my accessibility to the accounts, what will be my accessibility to every other thing. These are your rights and these are your duties, what you are supposed to do, which you are not supposed to do. आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो ड्यूटीज में आ गया. तो इसका अपन लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे. म्यूचुअल एग्रीमेंट विल डिसाइड, म्यूचुअल एग्रीमेंट विल डिसाइड आर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, एंड दिस जनरल प्रिंसिपल इज वेयर? दिस इज इन सेक्शन 11. यही आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. प्लीज राइट डाउन, लिख सकते हैं आप लोग कि विच सेक्शन डील्स विद दी
Which section deals with the general principle regarding the mutual rights and duties of the partners? This is section 11. अब जरा पढ़ते हैं section 11 क्या कहता है. Please see this. Section 11. So I am coming to the bare act of section 11 now. This is section 11, determination of rights and duties of partners by contract between them, between partners. This is heading, and this is the clause 1. This is clause 1. Subject to the provisions of this act. Please understand this. This line is very important. Subject to the provisions of this act. Don't forget this. I will explain it. You will have to explain it. And ये एक common phenomena है. This is the common phenomena of the Indian Partnership Act. You will have to read it very carefully कि किसी भी section में ये line तो है या नहीं है. Subject to the provisions of this act. सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, ऐसा तो नहीं है. ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. तो ये जो लाइन क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मीनिंग देयर बाय कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11, जो सेक्शन 11 का मैंडेट है वो इन जनरल होगा और दैट विल बी इन विद सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. इस कानून के, इस अधिनियम के अधीन रहते हुए होगा. इट मीन्स वॉट, अगर अधिनियम ने कुछ इसका कॉन्ट्रेरी कहा, देन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस. तो ये बातें मैं कई बार समझा चुका हूं, इस लाइन को फोकस में रखना. अब पढ़ते हैं आगे. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट क्या होगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ whom, of the partners of a firm may be determined by a contract between the partners. So what you are deciding? You are deciding the mutual rights and duties. How can you determine this? You can determine this by a contract, but subject to the provisions of this act. अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसी का मतलब समझते हैं पहले हम लोग, क्या मतलब होगा इस बात का. चलिए पहले मैं आपसे पूछता हूँ, कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? एवरीवन शुड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस. मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी क्लास कहाँ पर स्टैंड करती है. प्लीज सी दिस, एवरीवन प्लीज. इसमें तो याद करने का भी कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन करना है. मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आइए समझते हैं इसको. सी, दिस इज द जनरल रूल. व्हाट इज द जनरल रूल? देखिए रहा, बोर्ड पर देखिए रहा. आई एम एक्सप्लेनिंग इट नाउ. देर आर टू पार्ट्स इन दिस slide. Number 1 is this subject to the provisions of this act, and number 2 is what? The mutual rights and duties may be determined by a contract. It means what? इसको समझिए. If you and me, all of us are partners. Suppose we all are partners. So according to this section, it's section 11, our rights will be determined by us through a contract. Our mutual rights and duties can be determined, can be signified by us. आप और हम बैठ करके एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी आवर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज. बट इज देयर एनी लिमिट फॉर दिस विच शुड नॉट बी क्रॉस्ड? यस, देयर इज ए लिमिट. देयर इज ए लिमिट एंड दैट इज द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. वी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. हम जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के विरोध में नहीं जा सकते. वी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल टू द कॉन्ट्रेरी मतलब कैसे समझिए आप, जैसे सेक्शन 9 and 10 है. वी विल सी दिस. दीज आर द सेक्शन 9 and 10. दीज प्रोवाइड्स यू सर्टेन ड्यूटीज. यू सी द स्लाइड. These sections 9 and 10, these provide certain duties of the partners, ठीक है, which must be adhered to by all the partners. कुछ कर्तव्यों के बारे में बताते हैं सेक्शन 9 and 10 जो हर एक पार्टनर उसका पालन करेगा. ओके, नाउ दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. These duties you cannot contract, you cannot make a contract contrary to these duties. You cannot say कि हम सभी कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं. There are certain provisions which you cannot violate of that. That is why they have used the word what? They have used this expression subject to the provisions of this act. It means
कि you can decide your rights, you can decide your rights, but still you will have to comply with the provisions of the act. एक लिमिट रहेगी. अगर हम कहें, सपोज ऐसे समझ लीजिए आप लोग, हम सब बैठे हैं, वी आर द पार्टनर्स. नाउ व्हाट शुड बी राइट्स एंड ड्यूटीज. अब अदीशा मैडम ने कहा कि सर इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, यू प्लीज गो टू सेक्शन 4, आप ही ने पढ़ाया था, सेक्शन 5 भी आपने पढ़ाया था. एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वी कैन डिसाइड एवरीथिंग नाउ. यस वी कैन डिसाइड, बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि हम जो चाहे करेंगे. रीजनेबिलिटी, और वो रीजनेबिलिटी इज फिक्स्ड बाय द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. मींस इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के प्रावधानों के अंतर्गत ही कर सकते हैं आप. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. यू कैन डिसाइड योर राइट्स, you can decide your duties, but not against the provisions of this act. You will have to follow the provisions of this act. तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आपको आई नहीं आई. नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन टेक ऑफ द सेक्शन 69 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सेक्शन 69 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन डिसेबिलिटीज. Disabilities suffered by the partners of unregistered firm. Section 69, you can take the example of section 69. What 69 says, that there it says that if the firm is unregistered, then you cannot sue each other for your mutual rights. You cannot sue the third parties for your rights. So there are certain disabilities. in section 69 पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन सेक्शन 69 के प्रोविजंस हैं कि आप कुछ काम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सू. फाइन, द पार्टनर्स कैन नॉट सू इफ यू आर द पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म. ये मैंडेट है सेक्शन 69 का. नाउ अगर हम कहें, वी कैन नॉट से कि जो लिखा हुआ छोड़ो ना, 69 की बात कौन करता है. वी आर द मास्टर्स, वी आर पार्टनर्स, वी आर डूइंग बिजनेस, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल, वी आर शेयरिंग प्रॉफिट, वी विल हैव टू बियर द लॉस. तो हम डिसाइड करेंगे. सेक्शन 69 कहां से आ गया. तो द क्वेश्चन इज, कैन यू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी ऑफ सेक्शन 69. क्या आप सेक्शन 69 के विरोध में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. कैन यू ओवरलुक द सेक्शन 69. आंसर इज नो, यू कैन नॉट वायलेट सेक्शन 69. So therefore you can contract everything, you can decide your mutual rights and duties, but not to the contrary of the provisions of the contract. Provisions of the Indian Partnership Act. You cannot contract to the contrary of the provisions of the Indian Partnership Act. So I gave you example of section 9 and 10. Section 9 and 10, what they do, they provide you certain duties. I am coming to that. Section 9, see this. This is the language of section 9. Please try to understand this. Section 9. This is, partners are bound to carry on the business of the firm ... So see the language, initial language. Partners are bound to do this. So here you will see in the language of section 9 that this is not subject to the contract. It means what, कि ये जो ड्यूटीज आएंगी सेक्शन 9 में, we will discuss कि these duties are applicable on each and every partner despite anything in your contract. आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. सेक्शन 9 की जो ड्यूटीज हैं वो इन जनरल सभी पर एप्लीकेबल होंगी. एवरी पार्टनर इज बाउंड टू फॉलो देम. कोई भी पार्टनर उसको वायलेट नहीं कर सकता. हम उसके विरोध में जाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. प्लीज बात समझ में आई नहीं, बताइए मुझे. सो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं. इन लास्ट, टू कंक्लूड, सेक्शन 11 गिव्स यू द जनरल रूल दैट mutual agreement will decide your rights and duties, but you can't go beyond 69, 9, 10 and so on. There are so many examples may be there.
तो you cannot go beyond the provisions of Indian Partnership Act. तो डू यू अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? सेक्शन 11 की बात चल रही है अभी। सेक्शन 11 की पहली बात थी, पहली लाइन थी आपके लिए यहाँ पर। ये बात समझ में आई आपको? हाँ या ना बताइए। वैसे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, बोलो हाँ या ना। बढ़े आगे को एवरीवन? कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। अब प्लीज कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 11 नाउ। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट may be expressed or may be implied by the course of dealing. P for prelims. This can be the question in your prelims, whether it is necessary, whether the contract, which is determining your rights and duties, R&D, whether it should always in written, whether it should always be expressed, or it may be implied as well. Yes, it may be implied as well, and this can be question in your prelims. Please mark P for prelims. And secondly, next question, from here you will expect a question, and that is such contract may be varied. How it can be varied? By consent of all the partners, and this is the question for your prelims. Please highlight all the partners. If you want to bring change into this contract, if you want to bring the changes in this contract, which contract? Which is deciding your right and duties, which is determining your mutual rights and duties. अब उसमें आप वेरिएशन लाना चाहते हैं कि नहीं, पहले हमने ये डिसाइड किया था कि अक्षिता लेगी 1% और हम सब लेंगे 99%। अब ये रो रही है, धो रही है, तो चलो इसमें कुछ वेरिएशन कर देते हैं। अब इसको खुश करने के लिए इसका शेयर 1% और बढ़ा देते हैं, तो अक्षिता को हम 2% का पार्टनर बनाते हैं इसमें, ठीक है। सो बट नाउ दिस, इसे हम कहेंगे वेरिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हमने वेरिएशन किया है, लेकिन वेरिएशन किस तरीके से होगा ये प्रीलिम्स में आएगा। वेरिएशन आप करेंगे तब सभी की सहमति लेनी पड़ेगी, तो यहां पर मेजॉरिटी नहीं है। दिस इज व्हाट ऑल द पार्टनर्स, डोंट फॉरगेट दिस टर्म, द कंसेंट फॉर द वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। आप समझ रही हो? अक्षिता बात समझ आ रही मेरी? कितने की कंसेंट चाहिए आपको? You need consent of all the partners. This is not the majority of the partners who will decide whether there should be variation in the contract or not. I am repeating this line. Why? Because this is very important for you. So यहां तक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि number one, your rights and duties can be determined by your mutual agreement, number one, but that mutual agreement is subject to the provisions of this act, number two. And number three, that contract can be expressed or implied. Number fourth, you can vary the contract. Number five, you can vary that contract by the consent of all the partners. तो ये 5 points of legal points अभी आपको मिले हैं यहाँ पर। I believe कि आपको आइडिया होगा इसका। And next is what? You are saying the consent, then such consent may be expressed, it may be implied as well. So again, wherever there is consent, general rule है ये, general rule है, wherever there is a consent, the consent is of what? Consent may be expressed, consent may be implied. So please, this is section 11 clause 1. I believe कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। Hurry up. Section 11 clause 1 is complete from my side. ये आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सब लोगों ने, मैं आपको एक्सक्लूड करता हूँ, आप सब लोगों ने डिसाइड किया कि गौरव भैया के घर पर पार्टी करेंगे, ठीक है। गौरव भैया, तो यू म्यूचुअली एग्रीड टू हैव ए पार्टी एट द हाउस ऑफ गौरव। नाउ यू हैव डिसाइडेड व्हाट म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। तुम थम्स अप लाओगे, तुम ये लाओगे, तुम पनीर लाओगे, तुम म्यूजिक का इंतजाम करोगे, तुम फिल्म का इंतजाम करोगे, ये सब आपने आपस में बांट लिया। नाउ you can have a party, but subject to the mandate of the father of Gaurav, that who has said कि no party will be there in the house beyond 10 p.m. So this is the provision of the act, father of the Gaurav, कि गौरव के फादर ने कह दिया कि 10 बजे के बाद में पार्टी नहीं होगी। So all you friends can decide your mutual rights and duties regarding holding the party, but subject to the provisions of the order of the father of Gaurav, that
दैट इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 10 PM, 10 बजे से ऊपर नहीं जाएगी पार्टी फिर वो। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक सीलिंग आ गई अब कि आपके जो म्यूचुअल डिसाइड करने की पावर है क्या वो अनलिमिटेड है? नो, दिस इज नॉट अनलिमिटेड, दिस इज लिमिटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो दिस वाज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 11। इसको ढंग से दिमाग में बैठा लेंगे तो आने वाले रास्ते में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं 11(2), वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 11(2) इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, ये ध्यान रखना। 11(2) बहुत खतरनाक है, मेंस में आएगा। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सिमिलर लाइन यू हैव सीन इन सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसी प्रकार की एक लाइन आपको मिली थी सेक्शन 27 में। अब पढ़ते हैं क्या लाइन है इसमें, देखिए ब्रेक करके पढ़ना सीख जाइए ऐसे। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन व्हाट? इन सेक्शन 27 ऑफ विच एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, क्या हुआ? मीन्स सेक्शन 27 ICA में कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11(2), दिस इज 11(2) will override the provisions of section 27 ICA. Means section 27 is subordinate to 11(2). 11(2) में जो बात लिखी है वो मानी जाएगी, ना कि 27 में। 27 में क्या बात लिखी है पहले उसको देख लेते हैं। इन्होंने जिक्र किया है 27 का, तो हम देखते हैं पहले 27 क्या है। 27 basically says this. This is section 27 Indian Contract Act. Please see this. Section 27 Indian Contract Act says every agreement, प्रत्येक ऐसा करार by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind. So this is talking about, section 27 is talking about an agreement. You are agreeing, you are making a contract, you are agreeing what? That, and by that agreement you are restricting someone. You are restricting someone that you will not carry on that profession, you will not carry on that trade, you will not carry on the business. For example, जैसे जो अरशान भाई साहब हैं, हाथ मांगने गए नूरजहां का, ठीक। अब नूरजहां के अब्बा जी ने कहा कि बेटा करते क्या हो? कि करते हैं कि कभी जीतता हूँ कभी हारता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दे चलिए। ये इन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, नूर जगह हाथ आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मुझसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट ये है कि यू विल नॉट कैरी ऑन योर एडवोकेसी। आई हेट एडवोकेट्स, नफरत है मुझे वकीलों से। तो यू विल नॉट कैरी ऑन दिस प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी। और सर हाँ ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास तो हलवाई काम ही सीख रखा है, मैं हलवाई बन जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। फिलहाल तो नूरजहां का हाथ दे दीजिए आप। अब इसको पता है अच्छी तरीके से, सेक्शन 27 पढ़ रखा है इसने, कि जो एग्रीमेंट हुआ बिटवीन अरशान एंड दी वुड बी फादर इन लॉ, ये क्या हुआ? दिस इज ए रेस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट। रेस्ट्रिक्ट करता है एग्रीमेंट के द्वारा किस बात के? टू कैरी ऑन दी लॉफुल प्रोफेशन। और इसका फेट क्या होगा? इट इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड, सच एग्रीमेंट विल बी वॉइड। तो सेक्शन 27 सेज व्हाट? कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आपको मना करता हो, प्रोहिबिट करता हो, आपको रिस्ट्रिक्ट करता हो, आपको कि आप कोई प्रोफेशन नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, तो वो कैसा होगा? दैट विल बी वॉइड। तो दिस इज सेक्शन 27। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको सेक्शन 27 का? बताइए जल्दी से। सेक्शन 27 बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके। तो सो वाइल रीडिंग दिस नाउ, दीज लाइन्स ऑफ सेक्शन 11(2), you should keep in back of mind कि what is now section 27। आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या करेंगे? notwithstanding anything contained in section 27। 27 में कुछ भी लिखा हो, क्या हो सकता है फिर? such contract may provide that partner shall not carry on any business, partner shall not carry on business, any business
other than that of the firm while he is a partner. तो this contract, there can be condition in this contract. कौन सा contract है? Such contract means the contract which is deciding your mutual right and duties. This is the contract on the basis of जिसके चक्र which partnership arises. This section 4 में जिक्र किया गया है, section 5 में जिसका जिक्र किया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट मे बी कंटेनिंग दिस कि ए पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन द फर्म ऑफ व्हाइल ही इज ए पार्टनर. इसका मतलब क्या हुआ? ये भी इनका कहना ये है, इस क्लॉज का कहना ये है कि पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अब जो पार्टनर्स हैं कोई और काम नहीं करेंगे. एवरीवन विल बी डूइंग द बिजनेस ऑफ द फर्म ओनली. हाँ, सो दे कैन कॉन्ट्रैक्ट कि भी हम चारों लोग जो हैं वी आर द पार्टनर. सपोज आई अलोंग विद यू, एवरीवन इज पार्टनर नाउ. तो वी कैन डिसाइड व्हाट कि दैट नो वन विल प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज. विजयन सर अब पढ़ाएंगे नहीं और हम सब में से कोई भी अब कोई भी अदर बिजनेस नहीं करेगा जो अपने फैमिली बिजनेस हो सकते हैं. एवरीवन विल कंसंट्रेट ओनली ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म. अब केवल सबका एक ही गोल होगा, वी विल हैव टू टेक दिस फर्म अप एंड अप. तो नाउ दिस एग्रीमेंट इज रेस्ट्रिक्टिंग एवरीवन. यू आर रेस्ट्रिक्टिंग मी. सपोज कीजिए पार्टनरशिप फर्म इज फॉर द फिल्म मेकिंग है. डायरेक्टर कौन है हमारी फर्म की? डायरेक्टर है मान लीजिए अक्षिता मैडम, शी इज द डायरेक्टर. सॉरी, हाँ. तो और ऑल आर एक्टर्स. अब इन्होंने कहा कि सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, टीचर थे आप विधि में, नाउ यू आर द पार्ट ऑफ आवर फर्म. फाइन, नाउ यू कैन नॉट टीच, कांट टीच. तो शी इज प्रोफिटिंग, दिस एग्रीमेंट इज प्रोहिबिटिंग मी टू कैरी ऑन द लॉफुल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. As per section 27 this should be void. ये void होना चाहिए. But section 11(2) saves such kind of restrictive agreements, and in this regard section 11 says this: such contracts may provide that partners shall not carry on any business other than the firm. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रेस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, बट इट इज परमिटेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिकॉज ऑफ दिस. इट इज सेव्ड बाय दिस. ये जो लाइन है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, ये सेवियर है इसका बिकॉज ऑफ दिस. इन्होंने कहा कि सेक्शन 27 में कुछ भी लिखा हो लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं. ये रही बात. 27 सेज सच एग्रीमेंट्स आर void. Such agreements are void, but 11(2) says no, such agreements are valid agreements. तो बोलो हाँ या ना. समझ में आता है आपको? सेक्शन 11(2) समझ में आया नहीं आया? So this is section 11. Section 11 is over from my side. It will be over soon, I believe, from your side as well very soon. जब आप इसको याद कर लेंगे. Now I come to अगेन जो हमने शुरुआत की थी वो यहां से की थी. वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. सेक्शन 11 प्रोवाइड फॉर द जनरल रूल. दिस 11 प्रोवाइड्स फॉर जनरल रूल दैट यू कैन डिसाइड योर राइट फ्रॉम द म्यूचुअल राइट्स. ठीक. एंड इन दैट केस नाउ वी विल हैव टू गो टू दिस वाज द जनरल रूल. एंड नाउ एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर वी विल स्टार्ट सेक्शन 9. सेक्शन 9 में समझिए. प्लीज कम टू दिस सेक्शन 9. very important for your prelims. Section 9, general duties. So which section deals with the general duties of the partners? This is the question for your prelims and the answer is here now. क्या कहता है ये? पढ़िए. Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage. तो दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी. देखिए क्या मतलब है, कैसे पार्टनर्स आर बाउंड. पहली बात को ही समझिए. द इनिशियल, मैं कोशिश करता हूं आपको ना बच्चों की तरह समझाऊं एक बार अच्छी तरीके से, बट देन आई एक्सपेक्ट कि आपको मैंने इतने बहुत
बहुत बेसिक लेवल से बहुत अच्छे तरीके की चीज़ समझाई, तो उसके बाद आप रटनतम शुरू कर देंगे उसको, फिर छोड़ना नहीं चाहिए आप लोगों को, अदरवाइज मेरी मेहनत सब बिखर जाएगी, बेकार हो जाएगी सब वो। ठीक, तो पार्टनर्स आर बाउंड, इसी से इंडिकेट मिलता है, यू आर बाउंड मीन्स इट्स योर ड्यूटी, आपको ऐसा करना होगा, यू आर बाउंड टू डू दैट, इट मीन्स व्हाट, यू आर बाउंड टू डू दैट, इट मीन्स व्हाट, दिस इज योर ड्यूटी। तो दिस सेक्शन, जैसे इसकी हेडिंग भी है, इट इज डीलिंग विद व्हाट, ड्यूटीज। और ड्यूटीज कैसी हैं, ड्यूटीज हैं जनरल, इट मीन्स दीज ड्यूटीज आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आप स्पेसिफिकली ड्यूटी फिक्स करते हो, ये जनरल ड्यूटीज है। अब इनिशियल वर्ड्स देखो यहां पर, देर इज नो सच थिंग सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, sorry, you will not see any word here subject to the provisions of the act, subject to the contract, तो ये ध्यान रखना, these are the absolute duties, mandatory duties, these are not subject to anything subject to the contract, means by contract you cannot override these duties। सेक्शन 9 में जो ड्यूटीज आएंगी उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, ये ड्यूटीज तो ही हैं, ये क्वेश्चन ऑफ प्रिलिम्स भी हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा और यहीं से आपका मेन से क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, नंबर 1, कौन कौन सी ड्यूटीज है। अब आसान है, एक बार अब स्कीम समझ ली कॉन्ट्रैक्ट की, इस सेक्शन की, फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, फिर ज्यादा कुछ है नहीं। नंबर 1 ड्यूटी क्या है आपकी, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, बिजनेस करेंगे आप। नंबर 1 ड्यूटी, मैक्सिमम कॉमन एडवांटेज, दिस इज नॉट पर्सनल एडवांटेज, ध्यान रखना, कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे आप। एंड टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, यू विल बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, ये दूसरी ड्यूटी हो गई। एंड थर्ड इज व्हाट, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड full information of all things affecting the firm, so this is your duty that you will provide full information, you will provide all the accounts, true accounts, आप true accounts देंगे, आप सभी सूचनाएं देंगे, किसके संबंध में, फर्म के संबंध में, किसको देंगे, टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को देंगे, और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके विधिक प्रतिनिधि को देंगे आप। तो दिस इज थर्ड ड्यूटी। तो दीज आर द ड्यूटीज, रट लीजिए इनको, क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी, कौन कौन सी ड्यूटी है, कौन कौन सी ड्यूटी नहीं है। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मतलब आप जो काम करेंगे वो सभी के लिए करेंगे, उसमें पर्सनल नहीं एडवांटेज लेंगे, पर्सनल एडवांटेज लेंगे तो आपको उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, या आएंगे आगे पढ़ेंगे, अकाउंट फॉर करना पड़ेगा मतलब उसको आपको वापस करना पड़ेगा, आपको फर्म कैन रिकवर इट फ्रॉम यू, अगर पर्सनल एडवांटेज के लिए करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो नंबर 1 ड्यूटी, कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे, और तीसरा ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन देंगे किसी पार्टनर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। सेक्शन 9 समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। So I come to now section 10. Please see the section 10. Duty to indemnify for loss caused by the fraud. काम करते हैं, सेक्शन 9 से मैं कनेक्ट करता हूं कुछ सेक्शन। प्लीज गो टू सेक्शन 16. Section 16. You please, there is a connection between section 9. I am trying to make a link between section 9 and 16. See, this is section 9 and this was the duty that they shall carry on the business to the greatest common advantage. अगर कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, इट मीन्स व्हाट, पर्सनल गेन के लिए नहीं करेंगे। एंड इफ यू डू दैट देन यू विल हैव टू फेस सेक्शन 16. दिस इज सेक्शन 16. व्हाट इट सेज, सेक्शन 1 सेज, प्लीज सी दिस, इफ ए पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अगर कोई पार्टनर अपने लिए प्रॉफिट डिराइव करता है फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म or from the use of the property or business connections of the firm, he shall account for that profit and pay it to the firm. So you are supposed to
you are supposed to what? Work for the common advantage, but if you derive for personal benefits, then there is a provision in section 16. सेक्शन 16 की आपको अकाउंट फॉर करना पड़ सकता है। तो एक हल्का सा आपको कनेक्शन है सेक्शन 9 और 16 में, ये मैंने करने की कोशिश की। अब आ जाइए सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। प्लीज गो टू द हेडिंग एंड दिस इज duty to indemnify loss caused by the fraud, P for prelims. Which section deals with the duty to indemnify for loss caused by the fraud? यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपके हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। एंड दिस इज every partner shall, again you will see there is no line subject to the contract, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm. So you are supposed to what? You are supposed to work honestly, but if you are causing loss to the firm, then you will have to indemnify the firm, but you will have to। सेक्शन 10 सिंपली ये कहता है कि अगर आपने फ्रॉड किया, नंबर 1, फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ, किसको लॉस हुआ? लॉस हुआ फर्म को, देन यू विल हैव टू इंडेमनीफाई द फर्म। आपको उस फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इट मींस यू विल हैव टू कंपनसेट द फर्म टू दैट एक्सटेंट। आपने फ्रॉड किया 10 लाख का, तो 10 लाख के लिए आपको उस फर्म का लॉस मेकअप करना पड़ेगा। इसे कहते हैं इंडेमनीफाई करना। ये बात कहां लिखी है? सेक्शन 10 में लिखी है। तो सेक्शन 9, 10, 11, अब इसमें आप देखो, अगर 12 to 17 देखेंगे आप, अगर आपको सेक्शन 9 and 10, these two sections are dealing with the duties, है ना? and these are duties what? These duties are not subject to any contract। ये ध्यान रखना। and these duties cannot be negative। it means what? partners cannot decide, see, मुझे थोड़ा सा फ्रॉड करने देना, बस सुनना सा, इतनी परमिशन दे दो, बस मांगना मत मुझसे, मैंने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस। दिस इज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड दैट जा करके। तो सेक्शन 9 एंड 10 की जो ड्यूटीज हैं, ये मैंडेटरी ड्यूटीज हैं, आप सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड अगेन section 12 to 7 you will see that the rights and duties होंगी, but those duties are subject to the contract between the parties। means section 12 से लेकर के 17 तक जो ड्यूटीज होंगी, सेक्शन 12 से कहां बताया मैंने? 17 तक जो राइट्स होंगे या ड्यूटीज होंगी, वो कब एप्लीकेबल होंगी? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। In the absence of contract, you can decide as per your contract। अगर contract absent है, contract silent है किसी point पर, then these sections will be applicable। तो section 9 and 10 will be applicable even if you have the contract to the contrary, but section 10, 12 to 17 will be applicable only when you don't have the contract। so ये सारी पूरी स्कीम है। मैंने आपको 9, 10, 11 बहुत डिटेल में समझा दिया। इनका पूरा आपसी कनेक्शन 9, 10, 11, 12 एंड 17 का आपस में स्कीम समझाइए आपको। सो आप लोग एक काम कीजिएगा, देखिए वीडियो सबको दे रखें, तो अपना रिवीजन वगैरह वो सब वीडियोस की हेल्प से जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू रखिएगा। तो कर लिया आपने पूरी क्लास। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, मेरे इतने जगाने पर आप जरूर जागेंगे और याद करने बैठ जाएंगे। देखिए मैं बहुत कठोर होकर कह रहा हूँ, ज़िंदगी में आपके घर वाले भी काम नहीं आएंगे। आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर और आपकी हेल्थ, यही आपको एक रेस्पेक्टफुल जीवन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, आखिरी श्वास तक आपको
एक जो रिस्पेक्टेबल लाइफ है वो आपकी हेल्थ देगी और आपका ज्ञान देगा, आपका कैरियर देगा। कोई काम नहीं है, कितना ही कोई प्यार करने वाला हो, तो सारे झगड़े छोड़ करके पहले अपने इस पॉइंट पर फोकस करो, अपने को स्टेबल करो और फिर जा करके कुछ और सोचना। अगर अभी तक याद नहीं करे तो चुपचाप बैठ करके याद करो बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए फिर ये। अरे हाँ, दूसरी बात, मैं हर बार कह रहा हूँ आपको कि आपको vidhijudical.com वेबसाइट और विधि जुडिशल एकेडमी का ऐप, इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बस वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वहाँ आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिलेंगे जो आपके लेवल को और एक प्रो लेवल पर ले जाएंगे आपको। उनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।